Good morning. This is BTech first year. Yes. Okay. Welcome to this session 2023-24 and welcome to Sri Rawatpura Sarkar University. Okay. This is your first class. Yes or no? Okay. I am taking physics class. Okay, physics lecture and physics lab also both. Okay, now this is your first class. Okay, total 80 plus student in BTech first year. Okay, today we discuss what are the syllabus of BTech first year. Okay, I am only discussing only physics part. Okay, in your physics recording on. Yes. Okay, in your daily class we provide video lecture. Okay, if you are absent in any one days, then you have to see your video lecture and complete your classes. Okay. Yes. Okay. Physics, this is well known branch of science. Okay, how many students are study in very deep in your 12th class? Everyone? Yes, everyone known about the physics. What are the physics and what is the meaning of physics? Okay, physics is the branch of science. Okay, in your 12th level, science is only just definition part. Okay, we just read and write down, note down and complete your exam and pass out your exam. Okay, but this is your what? Technology. Okay, the basic difference between science and technology is what? Science is depends only on the principle. Okay, but technology is we use this principle. Okay, we use this principle and science. Okay, then this is called what? Technology. साइंस क्या होता है? किसी भी का हम परिभाषा पढ़ते हैं या किसी का हम जैसे V इज इक्वल टू आई आर, दिस इज व्हाट? ओम्स लॉ. ओके, दिस इज ओम्स लॉ. इसको हम लोग पढ़ लिए, लिख लिए, ये हमारा साइंस कहलाता है. बट वी इंप्लीमेंट दिस फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I or R. What? Okay, this is your fault. Okay, I am giving just simple example of Ohm's law. V is equal to IR, but I am asking V is directly proportional to I ki R. You all are confused. Yes. Yes, you tell me about V. What is the Ohm's law? Yes. Red T-shirt. What is Ohm's law? No? Yes, anyone? Yes. V is directly proportional to I, या V is equal directly proportional to R. This one is right or this one is? First one is okay. V is equal to IR, right or wrong? V is what? V is what? I.
and R is okay. Just your mind fresh, na? Now come to the syllabus of BTech first year physics. Okay. University are divided in the syllabus of physics 5 unit. How many units? How many units? Okay. Today we explain the complete syllabus. Okay. You know what are your syllabus. Okay. Unit 1, unit, second unit, unit, third, unit 4 and unit 5. ओके, कैमरे में आ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, देख ले रहना एक बार. ओके, मैं यहां यूनिट का नाम बता रहा हूं, आप फिजिक्स के लेक्चर में आप यही के यही क्लियर होंगे. ठीक, आज आपका एक ओवरव्यू मैं पैकेज बना दे रहा हूं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डेली के डेली अपन क्या करेंगे, क्लासेस स्मूथ कंडक्ट करेंगे. ठीक, मैं जितना यहाँ ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूं उतना आपको आना चाहिए, हाँ या ना? ओके, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं आपको फिजिक्स का लेक्चर बहुत मजा आएगा पूरे 5 यूनिट तक. मैं नहीं जानता कि आप 12th का फिजिक्स कैसे पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको यह गारंटी दूंगा कि बीटेक फर्स्ट ईयर का जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको बहुत मजा आने वाला है. और ना आपको कोई बुक पढ़ना है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स लेना है, ना कुछ भी नहीं करना है. मैं अपना नोट्स दूंगा, मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, वो सफिशिएंट है आपका 70 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए. क्लियर? मैं अपना नोट्स दूंगा, प्लस डेली का आपका वीडियो लेक्चर बनेगा, वीडियो लेक्चर का एक लिंक जाएगा. यदि आपका एक आध क्लास मिस हो जाता है तो आप उस लेक्चर को देख के कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, अपना प्लानिंग. ठीक, स्टार्टिंग जो भी नॉलेज होता है जितना भी लोगे वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा. ठीक है, नॉलेज आपका अच्छा रहेगा तो अच्छा वो गेन करेंगे. ओके, इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मैटर बोथ you and you, okay, you talk freely. If any part are not understand, then you have to ask freely. Okay, you are not understanding the Hindi, something what I am taking, you understand or not? Clear? Simple doubt you ask me. Okay, don't hesitate what I am saying. Clear? Yes? Okay. But just we enjoy and you enjoy. Okay, physics is not a very big part. Okay, but Big Bang theory is very big theory in the invention of physics. Okay, you know. Now come to our topic. The name of unit number 1 is what? Relativity. What? Clear? Unit number 1, what is the name of unit number 1? Relativity. What? Relativity. Unit number 2 is nuclear physics. Clear? Unit number 1, relativity. Unit number 2, nuclear physics. Unit number 3, geometrical optics. Clear? Unit number 3, wave optics. Unit number 3, wave optics. Unit number 5, laser. Clear? Okay, you don't see in your mobile. Okay, concentrate in blackboard. Okay,
यूनिट नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, डोंट राइट, ओके, you remember here, okay. Unit number 4, wave optics, wave, सैफ अली खान नहीं बोलते हैं, सैफ अली खान क्या बोलते हैं, वेव, ऐसा करते हैं, ये वही वाला वेव ठीक है, इन लोग अच्छा वेव बोलेंगे। व्हाट आर द क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वेव ऑप्टिक? यस, वेव ऑप्टिक्स, यस, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? यस यस यस, फ्रेसिस, ओके ओके, मैं 2-3 दिन बाद नाम याद आएगा मेरे को ठीक, ओके। थोड़ा उसके साथ कैमरा घुमाओ तो सब लोग देखेंगे, उसको देखेंगे यस उसके साइड कैमरा घुमाओ, मर जाएगा। ये क्या है वो? यस, वेव, से लाउडली, वेव, या कम देखो, हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर टॉपिक को समझना है, टॉपिक को याद करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर चलते हैं। आपको मैं बीच बीच में हंसी मजाक भी कराऊंगा। देखो, आज की डेट में हर एक तरह से लेयर करेंगे तो स्टूडेंट को मजा आता है। मेरे ख्याल से मैं भी आपके जैसा ही हूं, कोई खास एज का नहीं हूं, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स को पकड़ना, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को जानना, कैसे समझा रहा हूं, किस तरीके से समझाऊं, इसमें मत जाओ। आपको समझ आना चाहिए कि टॉपिक आ रहा है कि नहीं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, हम केवल सिलेबस जान रहे हैं फिजिक्स में क्या होता है, तो आप फिजिक्स को देखते हुए चलिए क्या होता है, ठीक। लास्ट बार आप एक बार रिपीट करेंगे, से लाउडली। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, ओके। दिस इज कंप्लीट योर फिजिक्स, क्लियर, ओके। अब रिलेटिविटी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है इसको देखेंगे। कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, कोई किधर नहीं, मैं जितना बोल रहा हूं उतना अपने दिमाग में बैठाते जाओ, क्लियर। रिलेटिविटी आप जानते हो, है ना। रिलेटिविटी का थोड़ा बढ़िया एग्जांपल बता रहे हैं हम, है ना। रिलेटिविटी में क्या होता है, रिलेटिविटी इज बेस्ड ऑन 2 कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट? 2 कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड इज स्टेट ऑफ मोशन। फर्स्ट इज व्हाट? स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड इज व्हाट? स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट? दिस वन इज स्टेट ऑफ, दिस वन इज स्टेट ऑफ, फैन इज स्टेट ऑफ, दिस वन इज, क्लियर, क्लियर। बॉटल क्या है? ओके। यदि कोई कार बाहर से चल रहा है तो आप किसके रिस्पेक्ट में उसको स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बोल रहे हो? एनी वन रेफरेंस पॉइंट, then you have to compare and you say this object is state of motion and another object is state of rest. Clear what I am saying? यदि आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बता पा रहे हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और स्टेट ऑफ मोशन में। जैसे कि मैं यहां पर हूं, मेरे रिस्पेक्ट में मैं इस वाले को पूछा तो क्या बताएं आप, और आपके रिस्पेक्ट में भी क्या है ये, तो हम दोनों क्या हुए? रेफरेंस पॉइंट। क्या हुए? रेफरेंस पॉइंट। समझ आ रहा है? आप अपने रिस्पेक्ट में फैन को क्या बोल रहे हो? स्टेट ऑफ मोशन। बात को समझिएगा, मैं बहुत बड़ा थ्योरी बताने वाला हूं तो फिर आपको रिलेटिविटी का एकदम क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं, अब इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लियर। बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के बाद हम कोई ट्रक को जाते हुए देख रहे हैं तो हम क्या होगा? वो स्टेट ऑफ, यस, रेड टी शर्ट। कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? व्हाट आई एम सेइंग
You understand or not? You are understood or not? Huh? Okay. If birds are flying in front of you, then this condition is what? State of motion. Any feeble light in front of you, then this is what? State of, कोई पत्थर आपके सामने रखे तो क्या बोलेंगे इसको? स्टेट ऑफ रेस्ट. कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है? आपके रिस्पेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, इतना समझ पा रहे हैं? क्लियर? अब मैं अर्थ के ऊपर में खड़ा हो जाता हूं, ठीक? अब मैं अनदर प्लेनेट को देख रहा हूं. अनदर प्लेनेट को देखो, ठीक? अनदर प्लेनेट को देखेंगे उससे पहले ये आप सोचे हो कि अर्थ ऑलरेडी कैसा कंडीशन में है? फिर आप कैसे बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि स्टेट ऑफ मोशन में है? कैसे बोल सकते हो? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो ना? ठीक है, उसको इधर घुमाना ना. समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? भाई ऑलरेडी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में फैन को स्टेट ऑफ मोशन बोल रहे हैं, और अर्थ के अपने रिस्पेक्ट में है ना फैन को स्टेट ऑफ मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट. ये कंपेयर हम किस पॉइंट पे कर रहे हैं? अर्थ पे. समझ आ रहा है ना? कहां कर रहे हैं? अर्थ पे. तो अर्थ तो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में है, फिर आप कैसे क्लियर करेंगे कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में, स्टेट ऑफ मोशन में? थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब अर्थ के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, मैं ब्लैक बोर्ड में बना के दिखा रहा हूं, ठीक? सपोज ये अर्थ है, ओके? अर्थ के ऊपर में आप खड़े हो गए, क्लियर? अर्थ इज ऑलरेडी मूविंग अराउंड दिस सन, ओके? You seen another planet like Mars, Jupiter, Venus, okay? Every object, what? In motion condition, okay? तो यहां पर तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना. तो इन दिस यूनिवर्स ओवरऑल कंक्लूजन रिलेटिविटी का ये निकाला गया कि इन दिस यूनिवर्स नो एनी ऑब्जेक्ट इज perfectly state of rest or a perfectly state of motion. Each and every object is what? In motion. Okay? Clear? यहां से अपना कॉन्सेप्ट बनता है किसका? रिलेटिविटी. क्या मैं रिलेटिविटी को समझा पाया आप लोग को? क्या आप समझ पाए? किसी को पिन ड्रॉप डाउट होगा तो पूछ सकते हैं. Any doubt regarding this relativity? ये थोड़ा सा आप लोग को क्लाइमेक्स था, बाकी जब अंदर घुसते जाएंगे, टॉपिक समझते जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा. ये एक कहानी था जिसमें मेरे को आपको रिलेटिविटी को समझाना था. तो ये 2-3 चीज हैं जो आपको जोड़ के रखेगा, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. क्लियर? आगे बढ़ूं. अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमको देखना है? फर्स्ट, ठीक, स्पेस. व्हाट? स्पेस, टाइम. स्पेस, टाइम. स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टाइम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज व्हाट? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अभी बस सुनते जाओ ना, ये आपका सिलेबस है, ठीक है? सिलेबस आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है. देख तो सर एक ही दिन में पूरा सब चीज पढ़ा रहे हैं करके. बात समझ रहे हो? ठीक. अभी जितना आपके दिमाग में घुस रहा है ठीक है, नहीं घुस रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को एक बार और इस ब्लैक बोर्ड में लिख के फिर उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं. क्लियर? तो जितना आपके दिमाग में जा रहा है उतना समझते जाइए. देखो अभी एक बार बता रहा हूं, फिर इसको टॉपिक में बताऊंगा, एक बार आप लिखोगे, एक बार टेस्ट के लिए पढ़ोगे, फिर एक बार पेपर दिलाने के लिए पढ़ोगे. तो ऐसे करके 5 से 6 बार इस टॉपिक को ना चाहते हुए भी गलती से तुम लोग पढ़ डालोगे, ठीक है? धोखा से पढ़ डालोगे. कुल मिला के हम लोग पास हो जाएंगे अच्छे से, और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे. क्लियर? ठीक है? अब पढ़ाई थोड़ा ऐसी करने से ही होता है.
है ना, समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़े, कल और बढ़िया से एक कहानी सुनाऊंगा तुम लोग, अभी आज इसको पूरा कर देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस divided into two parts, inertial frame of reference, non inertial frame of reference. Okay, most important, Michelson Morley experiment. What? Michelson Morley experiment. बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं माइकलसन एंड मोरले, एंड ही परफॉर्मेंट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ओके, जब आएगा टॉपिक तो फिर बताऊंगा उसको ब्रीफ अच्छे से। उसके बाद आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। देन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डॉपलर इफेक्ट। व्हाट? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट के बाद E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू व्हाट? एम सी स्क्वायर। आइंस्टीन रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर? एनी डाउट? बढ़े आगे, रिपीट। ओके, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले, एक्चुअली माइकलसन मोरले क्या है? माइकलसन मोरले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर। जब मैं टॉपिक में आऊंगा तो अच्छे से और बताऊंगा, ठीक है? सब ये है 1887 में इनका इन्वेंशन हुआ था। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है इसमें, माइकलसन मोरले, जिसमें टॉपिक आएगा तो उसको क्लियर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे दूरबीन वाला नहीं होता जी दूर की चीजों को देखने के लिए। गैलीलियन साइंटिस्ट का नाम सुने ना, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली, इन योर 12th class already there are so many telescope, spectroscopies. Okay, again Lorentz transformation, Doppler effect, well known Doppler effect। पटरी रहता है उसमें कान ऐसे लगाते हैं तो जो उसका एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है और उसका फ्रीक्वेंसी जो बहुत दूर से कोई है उसको सुन पाते हैं। क्लियर? ये तो आप जान रहे हो, ठीक। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 में इतना मोटा मोटा देखना है हमको। क्लियर? तो ये आपका खत्म होता है यूनिट नंबर 1। क्लियर? एक दो टॉपिक और होगा तो वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतने टॉपिक को हमको एकदम अच्छे से करना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें और है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR। इसके 2 पोस्टुलेट्स हैं, उसको भी देखेंगे। क्लियर? यूनिट नंबर 1 एक बार और रिवाइज करा देता हूं। स्पेस टाइम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, डॉपलर इफेक्ट एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब देखिए आप सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में क्या क्या है देखिए। यूनिट नंबर 2 में आपको देखना है पहला चीज, व्हाट? चेन रिएक्शन देखना है। किसमें देखना है? चेन रिएक्शन। यस, ओके। चेन रिएक्शन, इसके अंडर में अपन देखेंगे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, अभी हम सिलेबस देख रहे हैं। चेन रिएक्शन देखेंगे, इसमें कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्यूजन एंड फ्यूजन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर को देखेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक, और क्या इसमें देखिए, बताएं और कौन सा इसमें? हाँ, फ्यूजन इन स्टार का कॉन्सेप्ट है, और
हाँ, फ्यूजन इन स्टार हो गया, और हाँ इलेक्ट्रॉन बैलिस्टिक हैं, ठीक है, और बता दिया हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर और साइट्स। चलिए ठीक, नाउ कम टू द, इसमें ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं है सेकेंड यूनिट में। अब देख रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में देखिए, यूनिट नंबर थर्ड में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा? हाँ, देखिए पहले इस टॉपिक को समझिए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहां पर केवल ऑप्टिक्स से रिलेटेड बात होगा, मतलब लाइट और लेंस की बात होगा, लाइट और लेंस की बात होगा। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट, ठीक। कार्डिनल पॉइंट भी देखेंगे तो कितने टाइप्स के होंगे? टू टाइप, 6 टाइप के, टू फोकल, टू फोकल, टू प्रिंसिपल और टू नोडल। हड़बड़ाना मत भाई, ज्यादा कुछ खराब सिलेबस नहीं है, ठीक है। मेरा फर्स्ट डे में ये बताने का मकसद यही रहता है कि बच्चे पूरा एक दिन जान ले उसको करना क्या है। इसके बाद देखो, मेरा शुरू से ये विजन रहा है कि बच्चे को एकदम क्लियर जो पढ़ाना है उसको सामने रख दो, ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, कितना हमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये यदि हम माइंड में क्लियर रखेंगे तो हमको इजिली, मतलब अच्छा लगेगा पढ़ने में भी, है ना। अब कोई टीचर पढ़ाते जा रहा है, स्टूडेंट को होश ही नहीं कितना पढ़ना है, समझ रहे हो। कल के डेट में मैं एक और टॉपिक छोड़ूंगा ना, तो आप बता सकते हो कि सर हमारा ये टॉपिक छूटा है, आप पढ़ाइए करके, ठीक है। तो इसमें कोई टीचर आपको बेवकूफ भी नहीं बना सकता। जो टीचर को बेवकूफ बनाना है वो कुछ भी आया पढ़ाया निकल गया, ऐसा नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य शिक्षा को महत्व देना है, आपको टीचिंग से एकदम कनेक्ट करना है। यदि कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली आके पूछ सकते हैं, मैं जहां बैठता हूं वहां आके पूछ सकते हो, क्लास में रहता हूं तो क्लास में पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके। यू आर फ्री टू टॉक इन रिलेटेड योर सब्जेक्ट रिलेटेड, ओके। कोई एकदम अदर टॉपिक में लेके नहीं आएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा। इसमें बाद फ्रेनेल बाइप्रिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, फ्रेनेल फ्राउनहोफर, क्लियर। और बताएं क्या इसमें? आई पीस देखेंगे, आई पीस में हमारा रैम्सडेन आई पीस और हाइगन आई पीस, ठीक है। रैम्सडेन और हाइगन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन फंसेगा यहां से, न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा फंसता है, ठीक है। इसके बाद और कौन सा टॉपिक है? हाँ, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑक्सीलेटर, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑक्सीलेटर, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेनेल बाइप्रिज्म है, फ्रेनेल बाइप्रिज्म है इसमें, ओके। और बताएं, वो हो गया। चलो, पीजो इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर, ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक ऑक्सीलेटर एंड ओके अल्ट्रासोनिक, ओके अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके। बस इतना ही, ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट जितने मैं पहले जो लिखा लेता हूं ना वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद जो पूछ रहा हूं आप लोग के लिए संतुष्टि के लिए है, ठीक है। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 4, वेव ऑप्टिक्स, ओके। यहां पर आप देखेंगे इंटरफेरेंस, क्या देखेंगे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ओके। उसके बाद फ्रेनेल बाइप्रिज्म, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। वेज शेप्ड फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म,
क्लियर? तो ये इतना टॉपिक आपका वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपका इंटरफेरेंस, 4 मार्क्स का आपका डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, देन फ्रेनेल रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग एंड वेव शेप, ये आपका फिल्म जो है 10 मार्क्स का है। ठीक, ओके, यहां तक क्लियर हुआ? इसको मिटा दो यहां पास। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 5. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ लेजर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? एनीवन? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट, बोलिए एक साथ मेरे साथ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यस, क्लियर? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बोल पाएंगे? You are not concentrated here. Why? What are the reason? Okay, so okay, light amplification by stimulated emission of radiation. यहां पर देखेंगे हम स्पेशल और टेम्पोरल का कॉन्सेप्ट, जिसमें डायरेक्ट आते हैं लेजर का। लेजर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, लेजर का कॉन्सेप्ट, लेजर का फ्रेमवर्क। ओके, लेजर के कॉन्सेप्ट में यहां पर देखेंगे एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड इमिशन, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, कोहेरेंस प्रॉपर्टी, ओके, इंटेंसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनलिटी। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ लेजर में देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड सेमीकंडक्टर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड सेमीकंडक्टर। सॉलिड में अपन देखेंगे रूबी लेजर, लिक्विड में देखेंगे CO2 लेजर, सॉरी गैस लेजर में देखेंगे हीलियम नियॉन लेजर। सेमीकंडक्टर में देखेंगे सेमीकंडक्टर लेजर। सॉलिड में और देखेंगे NdYAG लेजर। एंड इसका एप्लीकेशन पार्ट, क्लियर? रूबी लेजर 100% आपके एग्जाम में आता है। 3 से 4 लेजर में से एक लेजर आपको 10 मार्क्स देगा। मैं यहां से एकदम क्लियर कर दे रहा हूं। 4 नंबर आपका यहां से क्वेश्चन आता है, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जब क्लास में बताऊंगा आप बहुत मजे लेके पढ़ोगे इसको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन 3 अलग अलग टॉपिक है, तीनों में से किसी एक को पूछा जाता है, उसके साथ कोई एक टाइप्स को पूछा जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, लेजर में याद रखना रूबी लेजर, NdYAG लेजर और हीलियम नियॉन लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। कितना बोला मैं? 4। रूबी लेजर, NdYAG लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर। एप्लीकेशन, ये खत्म। अब इसी का सेकंड पार्ट का थोड़ा और सिलेबस बचा है, ये पहला पार्ट हो गया। इसमें पढ़ेंगे फाइबर ऑप्टिक्स में हम देखेंगे और क्या, इसमें देखेंगे न्यूमेरिकल अपर्चर
एक्सेप्टेंस एंगल, TIR के कॉन्सेप्ट, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब ये इतना हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। आपका सिलेबस यहां पर अब समाप्त होता है। ठीक, मेरे ख्याल से मुझे जितना लगा मैं आप लोग को बताया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट तो यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में मैप बन गया होगा कि फिजिक्स में अब कैसे पढ़ाई होने वाला है। इतना तो आप आज के स्टूडेंट इतना है कि बहुत इंटेलिजेंट है, समझ जाते हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 5 यूनिट है हमारे पास। 5 यूनिट में कौन कौन सा? पहला, सेकेंड, थर्ड, देख भाई, कई लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग से तो वही 11th 12th वाला कॉन्सेप्ट करा रहे हैं, बोलवा रहे हैं, ऐसे करके लग रहा होगा। तो भाई बोलोगे तभी तो पता चलेगा। बोलने के कारण ही तो आपका नाम याद हुआ है आपको, है नहीं? अब इसका नाम जो सुनील है ना, तो सुनील सुनील बोलोगे इसको तो समझेगा, और कल की डेट में इसको कुछ दूसरा नाम से बोलोगे तो क्या बोलेगा? 4-5 दिन उसी नाम को सुनेगा और उसी के जैसा रिप्लाई करना चालू कर देगा, है ना? ए छोटू 5 दिन बोल के देख, है ना, और 6वां दिन फिर बोल के देखेगा। समझ रहे हो? तो बोलना ही पढ़ाई है जहां पर जरूरत है। तो ठीक है, उसके बाद ये देख लिए, किसी को कोई दिक्कत? क्लोज करूं क्लास आज का? ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास, एक बार घुमा देना सबके तरफ। चलो थैंक यू क्लास। इसको मैं YouTube में अपलोड करूंगा, आप लोग सब अपना अपना फोटो देखना उसमें। ठीक है, मेरा हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि हर साल जो नए बच्चे फर्स्ट अटेंड करते हैं उसका एक बढ़िया वीडियो लेक्चर होता है, और भविष्य में वो याद रखेगा कि हम लोग यार बीटेक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास में हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था, और इस टाइप से हमारा ये इधर इन लोग के साथ मिलवा। ये क्या नाम है इसका आप लोग का जी? इन लोग से थोड़ा बात करते हैं। यस, प्लीज स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? Arvind G. David. Arvind G. David. Yeah. Where from? Liberia. Huh? Liberia. Liberia. Nigeria. Liberia. We have Nigeria. We have Liberia. Okay. Yes, your name? Francis, I will call you. Okay. You are clear? Yeah. Honestly. Any doubt, any suggestion So, regarding my class? yeah. If any part, which thing we implement? This is our first time, learning on you. This is our first day. Okay. Yeah. So we're not very catch up what you are already saying. Okay. But if we go in time, we'll understand. Okay. And we'll catch up with you. Yeah. Okay. Yes. Yeah. Yeah, English. Also the English skill. What are you saying about me in the lecture of physics? Oh, he is talking about your English. Like you need to, make your English a little bit clear. Okay. Yeah. Our English is clear and my English is clear. No, it's not too clear. Like some in Hindi, some in English. Okay. Both students are here, Hindi medium and English medium.